वेलकम टू द सेकेंड पार्ट जहाँ पर हम करेंगे ढेरों बात। सो गाइज अभी आप देख चुके हैं पीकूदा के साथ इंट्रोडक्शन हो चुका है एंड आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आई नीड टू आस्क लाइक हाउ डिड यू टू मीट That's a long history. I have told this history to me so many times that I think he should tell it now. ओके No, both of us met. The first time I went to his house, I wasn't even allowed in. Okay. I'll tell you what happened. I went with Bhavin. So yeah, Oh. the Oh, acha, acha. So what happened was, like me and another guy, another elder guy, we worked out at the same gym, and he told me that you are into comic books. Okay, there is a guy, there is a friend of mine who is also into comic books. So that guy, he took me to his house one day in the morning, and it was not in the morning. So it was near about 10:30 when people like normal people like us wake up and go to work. Okay, and we knocked on the door, and auntie came out. So she said that no, he's sleeping. He's come back later. उनको लगा कि कोई फैन आया है परेशान करने नहीं तभी क्या तभी fan? कोई तो fan नहीं तब है। मैं स्कूल तब मैं I think I had just I was in college or I So ये just कौन passed सा साल का college. बात हो रहा है which year I'm talking about I think 1999. I was 11. I was 2 years old Yeah. So auntie said that नहीं वो सो रहा है बाद में. After that we met near that Babin only introduced us The common friend. the common friend we're talking about, and he was very welcoming. He told me that yeah, come to my house. I have got a lot of comic books. Come. And that time I didn't used to collect. I didn't even know that those comic books are available in Kolkata. So I went to his house. He showed me his books, and the first book that he showed me was Batman vs Predator. And he used to buy those comics. And he told me that there is a place called Landmark in Kolkata where you can buy these books. It's still So, there I guess. it has become Star Mark, right? So he took me to Landmark once. हम लोग वहाँ पे जाते थे, हम लोग books खरीदते थे वहाँ पे. He took me to Free School Street even. Free School Street में singles मिलता था तब. तो जैसे मैंने बताया ना वहाँ से चोरी भी किया मैंने बहुत books. नहीं, फ्री स्कूल स्ट्रीट में एक बार मेरा और समीक्षा का एक बुक लेके झगड़ा हो गया था. नाइट क्वेस्ट द सर्च का एक इशू था, द हुड. तो वो इधर से मैं खींच रहा हूँ, उधर से वो नहीं, ये मेरा, मैं. And I was a bully. So I was bigger than him that time. No, but yeah, we both had love for comic books, and he chose it as his job, like making comic books. And I believe you don't feel like you're going to a job, right? Yeah, It doesn't- that's the reason why I also do YouTubing and stuff because पैसा ना भी बराबर आता है as compared to what my real job is. But मजा इसमें मुझे आता है. उसमें Exactly, like that exactly. is a profession, वो अपने जगह है, passion अपना जगह है. And he has like he's one of the lucky people जो passion profession को एक कर पाए हैं. Exactly. Yeah. Like उनको शायद रात को नींद बहुत Actually मैं अमीर नहीं बन पाया लेकिन मतलब हाँ नींद अच्छी आती है. अरे आप फैंस कमाए हो यार, वो भी एक किस्म का अमीरी ही है. नहीं, अरे बाबा वो बेसिकली मैं जिस ग्रुप के साथ मिलता था, मतलब आई वाज द यंगेस्ट इन दैट ग्रुप. Shamik, there was also another guy, Abhik. There was also like So then tell me जो बुक को लेके छीना झपटी हो रहा था आप दोनों में, जीता कौन? मैं जीती. छोटा नहीं, ये क्या करता था ना, ये इसको मतलब मेरे को जैसे लगा ना, आई कीप देम इन प्रिस्टीन कंडीशन. तो ये ऐसा करके खींच रहा था, तो मैं देख रहा था कि बुक कभी फट जाएगा बीच में से, तो मैं छोड़ दिया. अरे ये वो जैसे रील्स में मीम मीम आता है ना, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, ये वाला मीम. आप क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, चोट लग तुम्हें चोट लग जाएगी. तो वो रिक्रिएट हुआ था. सो एकदम वैसा ही हुआ था. बट अभी वो शॉप्स भी नहीं है अभी फ्री स्कूल स्ट्रीट, इसमें वो शॉप्स. तो हाँ, जॉब्स के बारे में जो बोल रहा था, तो देयर आर मेनी पीपल whom I have met since like I am the only one who has stayed back in IT. मतलब मैं पढ़ता हूँ अभी भी, मैं पागल हूँ कॉमिक बुक्स के लिए. बट एवरी वन ऑफ देम दे शाइंड इन देयर ओन एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज. लाइक गुरुदा कॉमिक बुक राइटिंग, ये कोई और है जो आर्ट वर्क में शाइन किए हैं. सो इनका निकनेम क्या है? गुड्डू. So ऐसे ही मतलब this was the way You we remember met. Dean? And Dean, मेरा बहुत सौभाग्य है कि इनके थ्रू मैं डीन दा से मिला था. That was a very talented artist. मैंने आपको Who ये passed देखा, away very young. उनका virulence, उनका ड्रॉप Virulence का दिखाया था ना उसका आर्टिस्ट अच्छा बना. था, वुडू चाइल्ड ऑल्सो. वुडू चाइल्ड वर्जिन के अंदर रिलीज हुआ था. वर्जिन के अंदर फैंटास्टिक आर्ट. और डीन दा के घर भी गया था मैं.
His so- real name is Dean. Dean Ruben Harapiet. He was an Anglo-Indian. Nice. So I went to his home. He took me, and like they were having a discussion, and then suddenly he got out some very old Mad issues, like Mad from Mad Magazine. comics, Mad magazines. So he gave me a few. So I The still have Gotham them. one or the original No, one? the original ones. So I have them. I still have them. Those Mad magazines. Prized possessions. Prize possessions. And whenever I open them, I miss that guy. That he was a very talented guy. Very talented, Yeah, but he passed away very early. That work was nice. वो अगर अभी यहाँ पे होते तो मतलब he And would have young become a big guy, name. like he was younger than me, I think. Couple of years younger than me also. He would have become a big name if he was here. So you used to work out, and you had a passion for comics as well. हाँ. Did he work out back then or no? No, he generally has a good physique, man. I mean, I don't know. He doesn't he's work not out that morbid much. obese or nothing like that. He doesn't work out that much. I And mean, his at lifestyle that- is also not that healthy. Let me be very honest. Yeah, No, very हाँ, life ये होता है, genetic होता है कि हाँ. कुछ नहीं नहीं, मैं थोड़ा वो स्विमिंग करता हूँ ना, तो उससे वो मेंटेन हो जाता है. स्विमिंग और जेनेटिक भी है कुछ, क्योंकि मैंने इनको देखा है, इनका एक ही जैसा ये स्ट्रक्चर, हाँ, मैं भी जब मिला था जब first से time. सिर्फ ये दाढ़ी थोड़ा सफेद हो गया, वरना मेरा दाढ़ी पहले सफेद हुआ इनसे. ये तो मेरा जब इनसे मुलाकात हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि But that time he was very skinny, you know. I'm very He was skinny. very skinny, very small. मेरा छोटा भाई वो सामने वाले पॉन्ड में नहाने जाता था, तो ये इसको मेरा Swimming पापा जाते सिखाता थे, था. स्विमिंग सिखाता था ये भी. हाँ. तो मेरे को तब पता चला कि अरे ये दादा को तुम पहचानते हो. बोला हाँ ये दादा का तो कॉमिक्स का बहुत ये है. मतलब इलाका भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो नहीं नहीं, एकदम neighborhood में था. एकदम नेबरहुड में था. हम लोग एक साथ ही रहते थे. अभी वो ये चले गए, मैं यहाँ पे आ गया. तो तो वैसे ही हुआ, और उसके बाद बहुत सालों का, like more than 2 decades of जान पहचान. I was in my early 20s when I met him. No. Like, what is our age difference? 5 years. 5 years. 5 years. So if you were 13, You were 18. 17, 18. College. Yeah, just college. Just college. College, yeah. तो I remember दो class ढाई में. डिकेड का हाँ. पुराना बात है. So Yeah. काफी पुराना दोस्ती है इन दोनों का. वो कलेक्टर बन गया, मैं राइटर बन गया. But we have lots of memories, old memories. So tell me, इतना पुराना दोस्ती है, आप तो शमिकता का सारा राइटिंग्स पढ़ ही चुके होंगे अब तक. Your favorite, writing or favorite comic book or graphic novel written by Shamikta, which one would it be? देखिए रिसेंट टाइम से मैंने जो पढ़ा है, I'd say it's Rakshak. Rakshak. He is a big fan of Rakshak. I am a big fan of Rakshak क्योंकि Rakshak Because you are a big fan of Batman as well, and there is some, देखो रक्षक में एक डायलॉग है, एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है. रक्षक में वो डायलॉग है दैट वी आर नॉट बैटमैन एंड रॉबिन, वी आर बैटमैन एंड बैटमैन, जो मानव देता है ना. हाँ. वो एक फंडामेंटल डिफरेंस है. और ये वहाँ पे सभी बैटमैन है, सभी अपने आप को बैटमैन समझते हैं. सो एक जगह में जहाँ पे शब्द ढेरशाना है, ठीक है, ओके, एंड ढेरशाना है, ये इसका मतलब ये नहीं कि ओनली बैटमैन हैज द लाइमलाइट. बैटमैन का नो किल रूल नहीं है, बैटमैन बहुत अच्छा आदमी है, बैटमैन बहुत उन लोगों में से सबसे अलग है. लेकिन उसके साथ जो कैरेक्टर्स है, सोचिए आप, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस विशाल ठाकुर कैरेक्टर. तो ये विशाल ठाकुर कैरेक्टर, he also had a very good story in his past, right? So that made me his fan. Okay, Manav has a fantastic background that made me his fan too. So Batman तो मैंने पढ़ा ही हुआ है, गौतम में सब विलेंस हैं, सब बुरे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबका एक अपना ट्रैजिक पास्ट है. किस लिए सारे वो बने origins हैं. को भी एक्सप्लोर किया हाँ, गया है, सब बखूबी origins को. तरीके से. इनफैक्ट हैमर पांडे, पॉन्डस, ठीक है, पॉन्डस क्यों मानव के तरफ इतना झुका हुआ है, वो वाला चीज वो आपको समझना पड़ेगा. तो इनफैक्ट हैमर पांडे का भी, तो मतलब आई लव्ड हैमर पांडे. और फिर वो डॉक्टर का, वो डॉक्टर सर्जन. सो मैं नहीं, मैं अच्छा इंसान. नहीं उसका क्या है, उसको गॉड कॉम्प्लेक्स है उसका. हाँ, कि मुझे अगर कुछ किसी का जान बचा रहे हो तो किसी का मारना भी पड़ेगा. मारना भी पड़ेगा. बैलेंस रखना पड़ेगा. तो I'm a big fan of Rakshak. I loved it. I also loved Karwa. मुझको इनका लिखा हुआ जो TNT है, TNT, because it came out first. I liked it a lot when it came out. बांग्ला में वैसा काम हुआ ही नहीं था उससे पहले. एग्जैक्टली. तो मुझको बहुत अच्छा लगा. और मेरा क्या होता है ना, लोग कहते हैं ना कि आप एक जोक बोलो, यू वोंट लाफ एट द सेम जोक ट्वाइस, होता है ना. इट्स डिफरेंट विद मी. इनका जो राइटिंग है, ये जब कुछ शुरू करते हैं तो ही जनरली डिस्कसेस विद मी ओवर अ बियर, मे बी वी ब्रोज हैंग आउट एंड बियर पीते पीते विल
discuss about that. He tells me- ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाता है. brainstorming ये छका ही रहता है इनके दिमाग में ये the blueprint is there and he also like maybe I put in a dialogue or something like that or maybe I scrutinize a bit Maybe for a second opinion or something. second opinion and he tells me the story so I love it then and then when it comes out I read it I love it then so मेरा डिफरेंट हो जाता है मुझको बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट मृत्यु भूमि आई काइंड ऑफ नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन और लाइक आई कैन ऑफ एंटिसिपेट इनका राइटिंग इतने दिन से पढ़ा है लेकिन जब मैं मृत्यु भूमि पढ़ूंगा फिर से मतलब आई होल्ड दैट बुक इन माय हैंड ब्लो माय माइंड बेसिकली दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड मैं बार-बार एक चीज बताता हूं ना कि आपका जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड अप करो बिल्कुल आप बेसिकली आप क्या शूसा दिखा रहे हो एक्शन दिखा रहे हो वो कर रहे हो वो बात नहीं आपका कैरेक्टर आपको बिल्ड अप करना पड़ेगा क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट सही से होगा ना एज अ रीडर हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उससे कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि देखो मैं जैसे वो रक्षक के बारे में बताया ना आई विल टेल यू वेरी सिंपल रक्षक में क्या है विशाल ठाकुर इज बेन ओके रक्षक इज बैटमैन मानव इज रेड हुड काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ रॉबिन हुड टाइप का मिक्स हां ऐसे ऐसे देयर आर ऑल सिमिलरिटीज बट आई एम मेकिंग माय ओन वर्जन ऑफ इट पूरा देसीपन के साथ इट्स लाइक कि कॉपी बोलना दैट वुड बी अ बिट टू मच कॉपी नहीं बोल सकता और जहां पे वो रक्षक खुद ही बोल रहा है कि ही वाज इंस्पायर्ड बाय बैटमैन टू डू ऑल दिस बात खत्म हां तो वहां पे और क्या बताओगे वहां पे ये सब कुछ तो ठीक है कैरेक्टर डेवलपमेंट करना बीच में टेंशन दिखाना कैरेक्टर के बीच ये रिलेशनशिप्स दिखाना क्योंकि ये लेट 80s का कॉमिक्स ये बहुत 80s, पढ़ते हैं 90s 80s 90s से So what is कॉमिक्स it? या सो उसमें भी ना ऐसा ही चीज था आप अगर एलन ग्रांट का रन पढ़ेंगे ठीक है तो एलन ग्रांट का रन में लाइक बैटमैन एंड द बैट फैमिली दे यूज्ड टू गो ऑन एट विद लाइक व्हाटएवर डेंजर केम इनटू गॉथम दे यूज्ड टू मिटिगेट दैट लेकिन वहां पे अलग सा एक स्टोरी चलता था किसी एक लड़की को लेके सोचिए सिल्वर क्लाउड या फिर सेलिना काइल ठीक है इसके साथ बैटमैन का ब्रूस वेन का रिलेशनशिप वो it kind of elevated the entire thing the entire storytelling के Bruce Wayne actually में कैसा है how does he react to all these situations so at that time Bruce Wayne का जो कैरेक्टर था और बैटमैन he was vulnerable exactly वो जो नाइटफॉल the road to nightfall जो the whole sequence that box of blood like he was tired he couldn't take it anymore but still he was going on there was a scene where he fell asleep on a rooftop remember और उस चीज को ना कुछ हद तक रिक्रिएट किया था स्कॉट स्नाइडर अपने न्यू 52 में लाइक ब्रेकिंग द बैट स्कॉट स्नाइडर जैसे कि ग्रैंड मॉरिसन ने ही मेड हिम like a half god so after that Scott Snyder brought him down to his roots that's why the Scott Snyder run is so famous well accepted because it is like the Alan Grant run and after that the Scott Snyder run because me personally I have the Grant Morrison all three omnibus but I have never been that great of a fan वो बैटमैन ऑफ ज़ोरेनर ये वो करके ना वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि खिचड़ी पकाया मैं बहुत खिचड़ी पकाया वो मुझे बहुत पसंद है कुछ लोग खिचड़ी पसंद है मुझे वैसे खिचड़ी पसंद नहीं है नहीं जिस खिचड़ी को खाने में like I like stories which will be very you know like very hard hitting and emotional देखो वो I was hyped up Grant Morrison omnibus मैं खरीदा हूँ ना at a young age I've invested this amount of money and I'm gonna read it एक बार पढ़ा मैं दूसरे बार हिम्मत नहीं हुआ कि यार फिर से मैं टाइम इन्वेस्ट करूं उसको पढ़ने में बट मेनी वर सेइंग कि सेकंड रीड इज मच बेटर बिकॉज़ यू विल हैव अ बेटर आईडिया सेकंड रीड इज मच बेटर वो हौसला और वो टाइम नहीं हो रहा है ना फाइनल क्राइसिस के साथ दैट इज टाइम इन विद द फाइनल क्राइसिस so second read is much better. I will tell you the third omnibus when Batman Incorporated comes in, Batman Incorporated का omnibus वो उतना अच्छा नहीं मतलब रॉबिन सारा दुनिया में हर जगह दुनिया में बैटमैन फैला के नहीं that again he goes back to that previous era of Batman वहाँ पे भी था बहुत सारा रेफरेंसेस तो बहुत सारा inspired heroes from Batman inspired heroes different parts of the world Batman Incorporated तो नहीं वो पुराने दिन में भी था वो उसी को वो वापस लेके आया बेसिकली रिटेलिंग है पे बोल सकते हैं फॉर मी पीक बैटमैन वाज दैट एरा उसके बाहर में कभी भी हाँ उसके बाहर वो देखिए सिर्फ नाइटफॉल तो सिर्फ रोड टू नाइटफॉल नहीं है नाइटफॉल से पहले भी कितना कुछ हुआ सोर्ड ऑफ इजराइल वेंजेंस ऑफ बेन उससे भी पहले वो दैट वो जहाँ पे जेसन टॉड मरता है जहाँ पे हाँ डेथ इन द फैमिली वो like he was you know like he was crumbling from that part वहाँ से उसका चालू होता है 4-5 साल पहले डेथ इन द फैमिली का डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाया था अगर आपको मजा लेना है क्योंकि that time was not like half as professional as what I am now
तो बहुत फनी एक रिव्यू आपको मिलेगा एंड या दैट आल्सो रेजोनेटेड विद मी, यू नो क्रोबार से पीट पीट के मारता है एंड बैटमैन वाज लाइक डिवास्टेटेड आफ्टर दैट कि मैं उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ा उधर. And that was basically, you know, like the whole journey to Nightfall. I think it starts from there. From there, slowly. By that time, when Bane comes, even when Tim Drake came in, like Tim Drake Drake, saved him, saved him. literally saved him from Scarecrow. Tim Drake का जो पहला appearance था. He told everyone that I have worked out his identity. Bruce Wayne is Batman and Bruce He Wayne was को a great detective. great detective. तो Bruce Wayne को Robin चाहिए. अभी क्या हुआ है? उसके बाद क्या हुआ? वो एज टिम ड्रेक बहुत दिन कंटिन्यू किया स्टोरी लाइन में बैटमैन और डिटेक्टिव कॉमिक्स में, जस्ट एज टिम ड्रेक. रॉबिन इतना रॉबिन वो रॉबिन बनने नहीं देगा बैटमैन उसको, उसका दिमाग में चल रहा था ये फिर से मरेगा ना मेरा और अल्फ्रेड उसको सीक्रेटली मतलब अपना विजडम दे रहा था, ट्रेन कर रहा था वहां पे. तो अल्टीमेटली व्हेन बैटमैन लाइक फेसेस द डेंजर, लाइक वो मौत के मुंह में आ जाता है, देन टिम ड्रेक हेल्प्स हिम. he was the first Robin to wear full pants. यस, फर्स्ट रॉबिन टू वेयर फुल पैंट्स. और अभी देखो कितना गिमिकी हो गया है सब कुछ. इवन डीसी हैज बिकम सो गिमिकी. They have got out a book, you know that. They have got out a new storyline, Robin Lives. What Robin? Death in the Family, Robin Lives. I don't know if you guys, I think that you guys. It's an Elseworld story. Right, it's not an Elseworld story. It's like a standalone book. There is no Elseworld logo there, so it's not even a what if. It just shows that at the end of Death in the Family, Robin lived, and there are maybe 4 or 5 issues, and they are also getting a trade paperback out. I don't know. who is the writer I don't know. and is it worth the read? The previous writer was Jim Starlin, right? Jim Starlin will not write it. It's not worth the read. But I mean, I found it totally gimmicky, entirely gimmicky. Unnecessary. And you don't find this gimmicky. They have made Tim Drake bisexual. Why? How? Why? इतने साल से वो कुछ bisexual नहीं था. अचानक वो bisexual बन गया अरे और वो- वो मजे की बात यह है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया, फिर से वो स्ट्रेट बन गया. मैं अभी बक चुका हूँ, लाइक सुपरमैन का बेटा बाइसेक्सुअल बन गया अचानक, यू नो कौन देखो, सा Let's not talk about that. I will lose my. I'll lose my marbles. don't lose your marbles, but please let me tell you one thing. पॉलिटिकल ओपिनियंस की तरफ हाँ, जाएंगे, नहीं, लेकिन हाँ। अच्छा हो रहा है अभी दुनिया में जो हो रहा है, कुछ नियम कानून यू नो तगड़ा बन रहा है, जरूरी है हद से लेकिन ज्यादा वो हद से ज्यादा हो रहा है. लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि इफ यू कंसिडर इट एज अ स्टोरी, सुपरमैन का बेटे को लेके जो स्टोरी बना है, द न्यू सुपरमैन, वो मेरे को स्टोरी बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट वाज रिटन बाय टॉम टेलर. स्टोरी इज वेरी at that point it felt like हाँ, unnecessary. unnecessary. देखो, there is no issues against you know those people, like I'm not trying to belittle them or anything. हो सकता है orientations, but जहाँ प्लॉट में जरूरत ही नहीं है ना, वहाँ पर घुसड़ना, like the example you were giving कि वो अचानक straight बन रहा है, फिर bi बन रहा है, फिर pointless, makes no sense whatsoever. So वो सब avoidable है, I guess. I mean, if you are a bisexual, it should show somewhere, you know, in your traits, like from since a very long time. But we just woke culture को support हाँ, करने वो के कल्चर को can't support just, you know, अचानक shift से मुझको सुपरमैन का बेटे का गे होना उतना issue नहीं लगा। मुझको issue नहीं लगा. मुझको स्टोरी बहुत अच्छा लगा. मैं बोल रहा हूँ, I have read the entire story. टॉम टेलर बहुत अच्छा लिखा. son of लेकिन टिम ड्रेक को जैसे दिखाया ना अचानक से, और फिर से अचानक से टिम ड्रेक फिर से ग्रिम बन गया, वो एकदम मैनली बन गया. ठीक है. राइटर का मर्जी चल रहा है, मजाक बना के रख दिया कुछ कैरेक्टर्स को. if you have got a good story, these kind of things they don't like highlight themselves as such for me. irritable नहीं लगता है. देखिए जैसे your friendly neighborhood स्पाइडरमैन का एक नया सीरीज निकला है, एनिमेटेड सीरीज. देखूंगा. हाँ, अगर आप वो देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट एक पीटर पार्कर को छोड़ के सभी ब्लैक हैं, सभी एशियन हैं, कुछ गे हैं, मतलब पूरा एकदम वोक कल्चर को एकदम हाईलाइट कर दिया गया. लेकिन स्टोरी बहुत अच्छा है. स्टोरी मतलब डू यू रिकमेंड कि हाँ देखने के बाद मजा है? हाँ, मजा आएगा. मुझको स्टोरी बहुत अच्छा लगा. वही मतलब पीटर पार्कर का जो इनोसेंस है वो एकदम, मतलब पीटर पार्कर मुझे एनिमेशन नहीं पसंद दिया. नहीं, पीटर पार्कर इज आवर पीटर पार्कर. लाइक आप छोटे, हम जब बच्चे थे, जैसा पीटर पार्कर का स्टोरी पढ़ते थे, दैट पीटर पार्कर. सो ही हैज हेल्ड हिज ओन कैरेक्टर इन देयर. सो मजा आएगा. मतलब मेरे को बहुत मजा आया देख के. तो माय किड्स आर आल्सो सीइंग इट, दे आर आल्सो लाइकिंग इट. तो
Hey, do you guys know that James Bond को Amazon ने वो कर लिया, acquire कर लिया? कब हुआ Yeah, है? so the James Bond ये आज ही सुबह निकला है. तो the James Bond franchisee now belongs to Amazon and it is ready to be expanded. So now you will be getting more 00s than James Bond and the universe will expand and there will be like Female bonds. and black bonds and Chinese bonds. Sounds so hopeless, right? and yeah, so technically speaking, Daniel Craig's Bond literally died. I mean, when he died, the franchisee died with him in No Time to Die. मोटामोटी वो मर जाता है. हाँ, मर जाता है. He No Time to Die में he dies, and they have actually ended the franchise. This is basically a reboot, and they are going to. You know, This is basically not a reboot. They are not doing it. They have acquired, and they have acquired on the terms that they will be expanding this universe in their own way. in without- their own way. I'm just hoping that they make that Warhammer 40k series. Warhammer 40k. See, it's up to Henry Cavill. He's one of the executive producers. So And he's very passionate about. Henry this. Cavill is very passionate about it. Pure nerd. he's doing Gundam, right? He's doing the live yeah. action of Gundam, and he's also doing Highlander. And he is an inspiration basically. Like that guy is a super nerd. वो अपना ही कंप्यूटर खुद कस्टमाइज करके बनाता है, गेम खेलता है, कॉमिक्स पढ़ता है, and बॉडी बिल्डिंग करता है थोड़ा बहुत. So I am also passionate about working out, creating a physique, reading comics. So ये जो nerd ये है सबका है, except for him who has a constant physique. ये हम लोगों को करना पड़ता है. नहीं, मेरा भी अभी तोंद हो गया थोड़ा. उतना चलता है, बंगाली है, ठीक है. हम लोग शायद थोड़ा नॉन बंगाली हो रहे हैं ये सब करने के चक्कर में. तो या थोड़ा बहुत पैशंस अपने अंदर जिंदा रखिए दोस्तों. एक बोरिंग लाइफस्टाइल मत जिए. अपना जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, हॉबीज है, उनको परस्यू कीजिए, नो मैटर वेयर यू आर, बिकॉज एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस मैटर्स. कितना कमा रहे, क्या कमा रहे, रात को सोने से पहले अगर मुस्कान है आपके चेहरे में, और एक सबसे बड़ी बात है कि आप ज्यादा कमा के आप क्या करोगे? आप मजा आएगा इससे. मजा आएगा. हाँ, इसमें इन्वेस्ट करो. Physical health and mental health. मेंटल हेल्थ बहुत ये इम्पोर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो protein for your body and carbs for your brain. Carbs is this. राइट. And beer for your happiness. So And brothers. बिल्कुल. Cheers. Cheers. But I am very happy to like finally introduced Piku and his collection and everything, because I have been talking about him for a long time, and even in my books, I think I have written about him on the Village. Village. He even had to sign a NOC with Amazon just because his name was mentioned over there. This has went down. I had no idea. Yeah. So- Even I'm grateful, to Shamik Da for making me meet this amazing guy and amazing collector Piku Da is. So Thank you. Thanks. He is By the way, I know I have a namesake to a film movie, but my real name is Shubhrudeep. My good name. वो तो जब handshake किया था. we Bengalis have nicknames. So we Indians have nicknames. So, अभी फिलहाल आप लोग के लिए जैसे मैं नियो हूँ, so that way. और मैं गुड्डू. Guddu, Neo, Piku. Nice. आपका निकनेम क्या है ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं. Matrix, Rakesh Roshan Universe, And this is actually true. Like I was inspired by the Satyajit Ray Matrix. Universe. I'm Satyajit Ray Universe. मतलब जब मैं मैट्रिक्स देखा था बचपन में, it blew my mind कि क्या हो रहा है. Like this is some amazing concept that I had no idea could manifest in such an amazing movie. Keanu Reeves, fantastic movie. Like and तब से this name stuck. Like मैं जब PUBG भी खेलता था, मेरा नाम वही नियो कैस्पर. Like the Neo name has resonated with me, and तब से ये Neo comics भी वहीं से है. So this is the exact reference that you have given. He is also going to Comic Con. You can meet him there. I am not going to Comic Con. I'm going on both the days. You're going on both the days. Saturday, No, Sunday. I'll be going tomorrow. I'll be taking my kids. 2 दिन का मैं नहीं खरीदा because I don't know. This is the first time to a Comic Con. अरे कुछ नहीं है 2 दिन देखने. मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है. हाँ, नहीं मैं बच्चों को लेके जाऊंगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो मे बी दे विल गेट बोर्ड एट सम there is a पॉइंट ऑफ टाइम. possibility. हाँ, तो क्योंकि मैं वहाँ पे अगर किसी से साइन वाइन करवा रहा हूँ, लाइन में खड़ा हो रहा हूँ, तो दे विल जस्ट उनको मजा नहीं आएगा. उनको हाँ, मजा नहीं. मे बी कॉस्प्लेयर्स को देख के थोड़ा एंजॉयमेंट हाँ. है कि यार ये सब क्या है. नहीं, कॉस्प्ले पार्टी में मैं लेके गया था उन लोगों को. यहाँ पे अपना डीसी कम्युनिटी ऑफ बंगाल ने एक कॉस्प्ले पार्टी नहीं वो बड़ा वाला रहेगा. नहीं, ऑब्वियसली वो बड़ा वाला वो तो कोलकाता कॉमिक्स कार्निवल में भी थोड़ा बहुत कॉस्प्लेस वगैरह होता है. ये कॉस्प्ले ये कॉमिक कॉन वाला कॉस्प्ले बड़ा वाला रहता है. वहाँ पे इन्वेस्ट करके मतलब दे गिव प्राइजेस एंड एवरीथिंग. नो पैसा वैसा मिलता है वहाँ. एंड अभी So अच्छा भी लग रहा है, you guys have like coming back to comic books. You guys know it's a 40th anniversary of The Crow, right? वो अच्छा मूवी रीमेक भी हाँ. कुछ हो रहा है. नेटफ्लिक्स पे आ गया ना क्रो अभी. The Crow Netflix में उसी के हिसाब से आया है.
So, have you read the Crow, the original text? Has anyone read that by James O'Barr? No, I have not. हाँ, मैं एंथनी पढ़ा हूँ राज कॉमिक्स एंथनी राज कॉमिक्स वाला तो So that is basically जाग उठा मुर्दा, ठीक है? तो वो क्रो से काफी इंस्पायर्ड था। मैं क्रो मूवी देखा वो था जो क्रो से इंस्पायर्ड नहीं था मेरे भाई, वो क्रो ही था। ठीक है, वो क्रो ही था। तो वो गॉथिक अटायर उसको दे नहीं पाया। जैसे फाइटर टोड्स जैसे इंस्पेक्टर स्टील ज्यादा था। बोलूंगा तो बवाल भी हो जाएगा। इंस्पेक्टर स्टील था। अरे मैं बोलता हूँ, मैं आई एम अ रीडर, आई एम नॉट अ पब्लिशर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर। इंस्पेक्टर स्टील था, रोबोकॉप, भेड़िया था आपका वो टार्जन वेयरवुल्फ मिला के, ठीक है, कोबी भेड़िया, आपका सुपर कमांडो भेड़िया दो बन जाते हैं, कोबी और भेड़िया। हाँ, कोबी और भेड़िया। Separate characters. तो सुपर कमांडो ध्रुव था अपना, नाइट विंग, ठीक है। तो परमाणु वाज एटम। बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज है परमाणु का। परमाणु बहुत जन नहीं पढ़े हैं, आई एम अ फैन ऑफ परमाणु बेसिकली। डोगा था अपना बेसिकली पनिशर, डेथ स्ट्रोक द टर्मिनेटर, इन दोनों को मिला के। वोकाल हीमैन था, वोकल तो ही बन। वोकाल पूरा हीमैन था। और क्या था, और मेरा फर्स्ट राज कॉमिक्स जादूगर शाकुरा, जिसमें जादूगर शाकुरा टेक्स सुपरमैन, स्पाइडरमैन, सबका ले लेते। मैं इतना बच्चा था, मुझे स्टॉल में वो कॉमिक बुक मिला, मैं हाथ में पकड़ा एंड इट जस्ट ब्लू माय माइंड। मैं सोचा कि क्या ऐसा भी हो हो रहा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और मैं उस कॉमिक्स को ना ऐसा पकड़ के सुना था। तो उसके बाद जब मेरे को पता चला, मेरे को शौक लगा। लेकिन अभी भी इतना गाली दिया मैंने बहुत गाली दिया था, लेकिन I still tell you that sensation, like when I see all of my favorite heroes in one comic book and Nagraj saving them, Indian comic book hero, तो it was like me saving them, like I'm going and saving them, so बहुत अच्छा लगा था मुझे। वो sensation अभी भी मेरे साथ है, वो that love। नागराज एक ऐसा कैरेक्टर था राज कॉमिक्स का जो बहुत ओरिजिनल था, इन द सेंस कि स्नेक जो पावर है ना उसको नेगेटिव वे में दिखाया जाता था। देन नागराज केम एंड मेड इट वेरी पॉजिटिव, बट समथिंग हैपेंड, लाइक उससे पहले तक सब ठीक था। क्लासिक नागराज का बात कर रहा हूँ, जो ट्रेंच कोट वाला। देन अ क्रिएटर केम, आई एम नॉट गोना टेक हिज नेम, उसने बनाया विश्व रक्षक नागराज, जो उड़ सकता है, जो एक महानगर नाम का शहर में रहता है, जो चश्मा पहनकर एक रिपोर्टर राज, एंड दैट इरिटेटेड मी बियॉन्ड मेजर, बिकॉज एक ब्यूटीफुल ओरिजिनल कैरेक्टर को एक रिप ऑफ बना दिया सुपरमैन का। वही क्लार्क केंट, मेट्रोपोलिस। नहीं, फिर भी एक चीज है, उड़ सकता है। आपने अगर नागराज का दो ओरिजिन दिखाया गया, उड़ कैसे सकता है भाई? सांप का कौन सा पावर उड़ सकता है? बनाना था सुपरमैन का रिप ऑफ, तो बना दो नहीं, बेसिकली दो ऑलरेडी शक्तिवान तो था उसके लिए। नागराज का पहला ओरिजिन जो था नागराज का, तो पहला ओरिजिन वाज बेसिकली he was a genetic एक्सपेरिमेंट। नहीं, उसके बाद तो वो चेंज कर दिया ना। तो नहीं, ये वाला तो थर्ड इटरेशन है, जहाँ पे मतलब ये वाला वो सुपरमैन बना दिया उसको, लेकिन बीच का जो ओरिजिन दिखाया गया था कि वो वो नागदीप से खजाना जिसके अंडर आता था, बेसिकली he was a son of a snake god, and that experiment basically elevated his powers, but he had those powers already। वो भगवान के लेवल में लेके चला गया। और वो साधु था ना, वो तीन सांप से निकलता था, वो तीन साधु एक त्रिफला। हाँ, तो he will tell me the secrets and stuff like that। I've read that series is good। मतलब वहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया ओरिजिन, जैसे ओरिजिन रिबूट होता रहता है अपना। सबसे ओरिजिन बेहतरीन रिबूट किया था नितिन मिश्रा ने विद नरक नाशक नागराज। वो जो रिबूट हुआ था ना, इतना इमोशनल था और वेल रिटन था। लाइक आज तक राज कॉमिक्स का कुछ मैं रिकमेंड करता हूँ तो नरक नाशक नागराज का 4 पार्ट्स का ओरिजिन सीरीज। Have you read that? I haven't read. I highly suggest you go and मुझे ये नए सीरीज उसका ये है ना, हेमंत कुमार का आर्टवर्क। नए सीरीज में मैं कुछ नए ध्रुव और डोगा खरीदा था, तो मैं पढ़ने बैठा, I couldn't read। No, new ones are not as good। नरक नाशक नागराज जो I think 2000 और 2010 के बीच में आया था। ये ओरिजिन लेके एक चीज है, जो ओरिजिन्स जो चेंज होते रहते हैं, तो एक चीज, I don't know you have read Doomsday Clock or not। So I have it but I haven't read it yet। So if you read Doomsday Clock, तो Doomsday Clock में जेफ जोन्स ने एक चीज़ बहुत अच्छा दिखाया कि ये जो यूनिवर्सेस रिबूट होते रहते हैं, ये जो बेसिकली DC इज ओमनीवर्स, नाउ इनफाइनाइट वर्स, सो ये सब जो रिबूट होता रहता है, एक के बाद एक टाइमलाइन को शिफ्ट होता रहता है, बिकॉज सुपरमैन केम इन 1939, उसके बाद वो आया फिर 1985-86 में, जो जॉन बर्न का रन हुआ। उसके बाद फिर जो सुपरमैन वॉल्यूम 2 निकला, जीरो आवर में फिर से चेंज हो गया वो सुपरमैन का ओरिजिन, फिर से सुपरमैन यंग हो गया।
उसके बाद फिर से न्यू 52 निकला, इन्फिनिट क्राइसिस, फाइनल क्राइसिस निकला, न्यू 52 निकला, उसके बाद न्यू 52 के बाद आया आपका ये वाला चीज, प्री फ्लैश पॉइंट एरा गया। बेसिकली जॉब जोन्स ने क्या ये दिया है कि दिस इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, और यूनिवर्स इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, मल्टीवर्स, omniverse, so it keeps on changing and keeps on resetting. So whenever a omniverse or a multiverse is reset, a planet explodes and a rocket shoots from there. So Krypton explode करता है और rocket, basically it's a shot in the dark, okay, like it's you have your utmost belief and you shoot that in the dark, and it and that belief lands somewhere. Where does it land? It lands on Earth. Every time the timeline is shifted, and every time a boy emerges from that rocket ship, and every time the universe resets itself. The boy is basically the antibody to all the things that are happening in the universe. Like The key, he attacks basically. the key. He attacks all the like outside forces and he makes everything right. So Man of Steel का जो ये है, the one day they will join you in the sun. So it actually comes true in if you read this entire story. So मुझे सुबह में रेड सन ये का story origin- बहुत अच्छा लगा था. Red Sun was Red brilliant. Sun was Red Sun very वो was भी brilliant. है एक्चुअली, Red मतलब Sun उसका was एनिमेटेड मूवी वाज आल्सो वेरी लूथर का लाइन एल लाइन बन जाता है लास्ट में, वो सही था वो. ये एक्सप्लोड कर जाता है, वो फिर से वापस आ जाता है. मतलब एल्सवर्ल्ड बनाना सबके बस के बात नहीं है, पर नहीं। ऐसा जब एग्जीक्यूशन Mark होता है Miller तो मजा आ is जाता है like- एकदम। मार्क मिलर तो वांटेड, रीड वांटेड, यू विल बी लाइक माइंड, योर माइंड विल बी ब्लोन. वांटेड पर है ना, नहीं पढ़ा। वांटेड नहीं पढ़े. Wanted अच्छा का वांटेड एक रिव्यू चाहिए आपसे वांटेड का, तो आप वांटेड पढ़ के एक अपने चैनल पे एक रिव्यू दीजिए. Wanted का मूवी नहीं. It's that good? इट्स दैट गुड Comic is very nice. कॉमिक. Taking your word for it then. हाँ, and the original story Ultimates, of Ultimates. Crow. No, Ultimates तो आप पढ़ेंगी. Crow. Okay, the Ultimates original. पढ़ा हूँ, जो it's Marvel का Ultimates का बात कर it's रहे the 40th anniversary. You No, know the that. So Mark Miller run, the first Mark Miller and Brian Hitch. Brandon, it's the ultimate cinematic experience. And अब that हाँ, actually kickstarted the Marvel universe. तो the MCU जो MCU. बना है ना, Marvel Cinematic Universe, वो पूरा उससे ही उसको ही water down करके बना है. You should read it. It's हैं। fantastic. Couple of volumes I have read and it's actually engrossing. Like There are I think 24 issues and 2 annuals. So Chris, हाँ. मतलब क्विक रीडी है। क्विक रीडी है, omnibus है, अभी अवेलेबल है, omnibus खरीद लो. Brian Hitch वाला ना? ब्रांडिश वाला, ब्रांडिश एंड बाय मार्क मिलर एंड Mark ब्रांडिश. Miller, Brian. तो क्रो का भी कीजिएगा, क्रो का ओरिजिनल Wanted Pro टेक्स्ट और ये Ultimates। अल्टीमेट्स, क्रो का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा. सो क्रो का मूवी भी ऐसा ही है ना. यू रिमेंबर दैट सीन, Tragedy से शुरू होता है लाइक आई डोंट नो यू हैव हाउ डीप यू हैव सीन क्रो, लेकिन वहाँ पे एक सीन है जब वो शेली शी ट्राइज टू क्रॉस द रोड एंड गाड़ी जा रहा है, तो एरिक उसको पकड़ के साइड में लेके आता है. सो एरिक एक वही पीछे एक बहुत सुंदर थीम म्यूजिक बजता है, एंड शेली उसको पूछती है कि व्हाट आर यू सपोज टू बी अ क्लाउन, तो वो ऐसा घूम के बोलता है समटाइम्स. एंड दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैजिक सीन्स ऑफ यू नो दिस कल्ट अ मूवी. मतलब इतना कल्ट मूवी तो मतलब बहुत कम उसका remake क्यों किया बताइए? रीमेक वाज हॉरिबल. मैं देखा नहीं हूँ। देखो इफ यू लाइक वो क्या नाम है उसका, स्कार्सगार्ड, वन ऑफ द स्कार्सगार्ड ब्रदर्स, वो जो ईडी रोल्स करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ईट का भी. ईट में उसका भी. मतलब शक्ल ही बना है इस चीज के लिए। हाँ, हाँ. और उसको क्रो में जब वो आया था ना, तो क्रो का मेकअप जब दिया, वो ही वाज एक्चुअली लुकिंग लाइक ही केम आउट ऑफ द कॉमिक बुक, बट द मूवी इज सो बैड. Story बेकार. सो बैड. हम लोग जब बच्चे थे इतना अच्छा मूवीज आता था. ये क्रो तो ठीक है, काइंड Remember from Dusk Till Dawn? फ्रॉम आई वाज गोइंग टू से दिस फ्रॉम डस्क टिल डॉन. मैंने बुलाया था घर पे. घर पे रात ये- को ये बैठ के देखा हम था। लोग देखते थे, सीआरटी मॉनिटर था छोटा वाला. सीआरटी वाटा अपन दोनों बैठ के देखते. तो फ्रॉम डस्क टिल डॉन क्या वो मजा, कैरामत बन गया। क्या मजा सिनेमा, क्या मतलब वो सब देख के हॉरर फील होता था। अब देखिए हॉरर फील अगर आपको होना है ना, यू वॉच फ्राइट नाइट, मजा भी था, हॉरर Horror भी भी था. था. वो जो दे आर गोइंग थ्रू एन एली एंड वो ड्रेनेज सिस्टम सीवर्स से ऐसा धुआं निकल रहा है, पीपल आर वॉचिंग, blue light, ब्लू लाइट होता है. बचपन में गूज़बम्प्स वो चीज फील करवाता थोड़ा बहुत, यू नो गूज़बम्प्स आर्नस्टाइन का। आर्नस्टाइन का गूज़बम्प्स वो मेरा मैं वो तो बहुत बच्चों के बड़ा लिए हो गया था. नहीं, तो मेरा मतलब लाइब्रेरी में भरा पड़ा था और मैं बहुत टाइम स्पेंड करता था उस So I watched a horror movie that actually मैं बचपन में बहुत डरता था. So I watched a horror movie that actually took out the you know the scare for horror movies from inside me. I was so scared after watching that horror movie. I couldn't sleep. The movie was In the Mouth of Madness. Oh, lovely film. It's a lovely film. I watched it. I couldn't sleep for one entire night, and after that I stopped being scared of horror movies.
I started watching like hell. नहीं ये फिर देखना पड़ेगा क्योंकि आजकल जो हॉरर मूवीज में देख रहा हूँ ना मतलब डर महसूस ही नहीं हो रहा है, मजाक लग रहा है। कोई- क्योंकि horror. क्योंकि क्योंकि CGI ज्यादा है भाई। नहीं, CGI ज्यादा है and नहीं, दूसरी बात क्या है ना, they're they have become focusing dated. अभी वो फील कभी आएगा ही they're नहीं। focusing less on the plot and focusing more on creating jump scares कि अचानक एक चिल्ला के आ जाएगा, उससे फटा है तो फटा, नहीं फटा तो और नहीं तो मुझे jaded जब तक- jaded आप कैसे लेकिन how आपके साथ can you वो say matchup होना चाहिए। how can you say jaded when you had Basket Case and you have Malignant? How can you say it is jaded? Yeah, that is it. So you had Basket Case, you have Malignant. You can bring in the old things and make it in a And new make it, way. yeah. Give it a wrapper, and it's still a good movie. You need a good You have writer and Terrifier. director for that. You had Maniac. You have Terrifier. Terrifier. So if you have those movies and you can like make movies like that now, why are you making movies like those elevated, so-called elevated horror movies? I don't know. Like A24 Like Saint Maud. I don't know how it is called a horror movie. बस लास्ट में जाके जल गई। हाँ, man. Pathetic यार। I don't know why even I watched it. मतलब the last I didn't watch it. थोड़ा अच्छा लगा बट इतना बड़ा मूवी बस लास्ट में वो जल रही है और उसका 2-3 मीनिंग निकल रही है देखने के लिए मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, स्माइल एंड स्माइल 2 देखो। Smile and अच्छा, Smile 2 अच्छा। देखा हूँ। Smile मुझको Smile अच्छा 2 नहीं is लगा। Smile 2 स्माइल Smile में 2 क्या is था ना, स्माइल वाज नॉट दैट एनग्रॉसिंग कि लास्ट में हाँ थोड़ा बहुत वो अपीयरेंस हुआ बट स्माइल 2 शुरुआत से ना जो डेथ्स एंड द प्लॉट डेवलपमेंट एंड द कैरेक्टर्स, द रोल्स दैट द कैरेक्टर्स प्लेड, द एक्टर्स बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले किया। आई वाज थ्रू आउट द मूवी आई वाज ऑन एज। स्माइल 2 का बात कर अच्छा रहा हूं। फिर मैं स्माइल का कहानी पे आता हूँ थोड़ा, ठीक है। स्माइल का कहानी जो है, वी हैव वॉच्ड इन्यूमरेबल J horrors and K horrors like that, right? There is a curse or something like that which is spreading and it's a viral curse and इसको nobody is रोकने के able लिए to, हाँ, किसी को सब कोई कोशिश कर रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा। इसका 3rd पार्ट आएगा, 4th पार्ट आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। उसके बाद इसका रिबूट होगा, ठीक सेकंड में है। भी क्या हुआ कि स्टेज में सबके सामने फैला दिया गया उस चीज को। रिसेंट तो हम लोग कौन सा देखे? कैप्टन अमेरिका मैंने यार। देखा भी नहीं है। मैंने भी नहीं। मैंने छावा देखा लेकिन वो नहीं देखा। तो अभी जिस डायरेक्शन में जा रहा है चीज है लाइक जेम्स गन हैज टेकन ओवर द डीसी थिंग एंड दैट क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ that is something which I am that's interested. everyone is hopeful about it. No, everyone is hopeful because see, again, I'll give a little bit of comparison. So जब मैन ऑफ स्टील निकला था, मैन ऑफ स्टील का पहला ट्रेलर निकला था, तो मैन ऑफ स्टील के पहले ट्रेलर में पहला जो डायलॉग था वो क्या था? What if a child wants to become more than what society wants it to be? ठीक है? If you see the iterations of Superman, सब कोई वही होपफुल, वही स्माइलिंग, वही बम्बलिंग क्लार्क केंट और होपफुल सुपरमैन के ऊपर वो लोग मूवी बनाते आए हैं या फिर लिखते हुए आए हैं। क्रिस्टोफर रीव्स बीइंग वन ऑफ द लाइक वन टू पोर्ट्रे दैट आइकॉनिक इटरेशन ऑफ सुपरमैन। सो इस मूवी में पहले इस मैन ऑफ स्टील का पहला जो ट्रेलर था उसी में बोल दिया था कि दिस सुपरमैन वुड बी डिफरेंट. This Superman would have its own journey and maybe he will face failure and maybe even death, and after that he will turn out to be the man he was supposed to be. Fine. Transformatory. Metamorphosis. There will be an entire transformation. There will be an entire character arc. And the reason why there was a mixed reaction is because कुछ लोगों को वो चीज पसंद नहीं है कि मेरा Superman तो एक Hollywood होना चाहिए. अभी वो पसंद नहीं आया, इसलिए what Warner Brothers is doing, what James Gunn is doing actually, they are creating a new DCU. They are putting Superman in the modern world being the world of Man of Steel, okay, where everyone is edgy. But Superman, that man inside the costume, that he is a Boy Scout, and the hopeful man and the smiling Superman, he's always meant to be. So क्या होगा? They are playing it in the safer route, and safer route it will go well. It will hit in the box office. I think it will. Safer route always होगा goes. ना कि सुपरमैन ऐसा ही था, ऐसा दिखाया गया. ऐसा ही था, ऐसा दिखाया गया. Experimentation से नहीं किया गया. अब दिखाएगा, बाकी का वर्ल्ड को डार्क दिखेगा, लेक्स लूथर को डार्क दिखेगा. जेम्स गन, I have been following him since his Trauma days, Trauma being the Trauma movies. So जेम्स गन डार्कनेस मूवी में लाएगा, ठीक है, वो लाएगा अपने तरीके से. अपने तरीके से भी जैसे ह्यूमरस मोमेंट है, डार्कनेस भी है. No. By that time, actually, people were they were not trusting on DC anymore. On Suicide Squad. That's why Suicide Squad it flopped. even Flash it started off so good and the end I don't मुझे Flash अच्छा लगा यार, मुझे. but the ending suddenly Mr. James Gunn brings in George Clooney and suddenly in the post credit scene Barry and Aquaman are talking. कुछ चीजें ना मतलब समझदारी के साथ करना चाहिए था, जैसे स्पाइडरमैन, उसमें क्या किया गया कि तीनों को लाया गया एंड उससे पहले ना मार्वल रूमर्स को एंटरटेन कर रहा था बट अपने साइड से कोई अल्टीमेटम नहीं दे रहा था कि ये तीन आएगा, एंड दैट वाज अ वेरी गुड मूव.
वहीं पर डीसी ने क्या किया, पहला ट्रेलर से बता दिया कि ये कीटन भाई साहब आ रहा है, और लास्ट में देखो जॉर्ज क्लूनी, चलो बढ़िया बात है, 80s के टाइम में ही वाज लाइक बिग थिंग, क्रिश्चियन बेल को अगर लाते अरे तब बवाल मचता। Christian Bale, but Christian Bale said that I won't be working if Christopher Nolan doesn't direct. तो वो सर्कमस्टेंशियल इश्यूज था, क्रिस्टोफर नोलन को भी ला सकते और थे शायद। what was about to happen with the Flash movie? The ending was supposed, आप लोगों ने इंटरनेट पे इसका पिक्चर्स भी देखा होगा कि फ्लैश मूवी का एंडिंग शूट हो रहा है, जहाँ पे वो कोर्ट हाउस में माइकल कीटन खड़ा है, साशा कैल इज द सुपरगर्ल, सो न्यू यूनिवर्स वाज गोइंग टू गेट फॉर्म, द बैट गर्ल का भी कैमियो था, जिसके बाद वो बैट गर्ल मूवी निकलने वाला था, लेकिन जेम्स गन आया, हाँ जेम्स गन आके बोला कि नहीं, मैं अपना रिबूट करूंगा, और उसने क्या किया, ही brought in George Clooney. I don't know what was the need. No, that was just a gimmick. That ended. नहीं, ऐसा भी गिमिक नहीं कि वो पैसा भी लाएगी, जॉर्ज क्लूनी को देखने वाले लोग अभी सिनेमा हॉल में शायद ही जाते हैं, तो Exactly. क्रिश्चियन बेल को और किसी तरह नोलन को शायद 2 सीन डायरेक्शन के लिए ला देते कि भाई तू इतना कर दे। और यहाँ डिज्नी को देखो यार, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम बना के उनको पता है, आ जाओ, पैसा कैसे छापना उनको बढ़िया पता है। अभी एक दो फिल्म अभी उन लोगों का फ्लॉप जाएगा when it comes towards that, closer towards the Avengers movie, no. I'm telling you they're going to make another एंड गेम लेवल थिंग, huge blockbuster. और वो लोग नहीं, सीक्रेट वॉर्स निकलना है ना, so they Secret Wars और नहीं, पहले Doomsday आएगा, फिर Secret Wars. तो सीक्रेट वॉर्स में शायद पूरा All Marvel characters आएंगे. और मार्वल कैरेक्टर्स पूरा आएंगे, तो अगर उनका कोई मूवी फ्लॉप भी जाए, they are using that movie to they're integrating that movie into their entire lore. अभी Adamantium का आ गया वहाँ पे. हाँ, मतलब बात में रिबूट नहीं करते हैं ये लोग, दैट्स देयर यू नो वेरी पॉजिटिव प्लस पॉइंट। वो Marvel comics में भी कभी उन लोगों ने रिबूट नहीं किया. नहीं मार्वल किया है, रिबूट नहीं, they are constantly doing time warps and stuff. बट ऐसे रिबूट नहीं और किया. मार्वल कॉमिक्स में यार लोग खुद अपने से लड़ते रहते हैं, मतलब अपने में कोई ऐसा ये नहीं आता अचानक से निक फ्यूरी बूढ़ा हो गया, अचानक से कैप्टन अमेरिका हाइड्रा हो गया, तो खुद ही में लड़ते रहते हैं, ब्रेन वॉश हो गया। बट हाँ, डीसी में जिस लेवल में रिबूट रिटेलिंग होता है ना, मार्वल में उससे कंपैरिजन में काफी कम होता है। लेकिन डीसी का लोर भी बहुत बड़ा है, इट्स अ बिग story. The reason why Grant Morrison had to write that multiversity and इतना explanation जेफ जॉन्स को भी देना पड़ा डूम्सडे में, मार्वल में किसी को इतना explanation देने का भी जरूरत ही नहीं पड़ा कि भाई समझो, हम लोग जो खिचड़ी पकाए है ना, इट्स लाइक मतलब बनेगा, तुम कोशिश करो बैठकर। जैसे कि नया अल्टीमेट यूनिवर्स आ गया अचानक से, तो यू आर रीडिंग द न्यू अल्टीमेट स्पाइडरमैन, राइट? अल्टीमेट स्पाइडरमैन, अभी जो अल्टीमेट यूनिवर्स है वो है रीड रिचर्ड्स मेकर था, तो मेकर बेसिकली ही फाउंड आउट दैट few people are going to be superheroes in the future, so उनको तभी दबा दिया। तो दबाने के बाद क्या हुआ, और एक आयरन मैन था, तो वो मर गया शायद, उसका कुछ हो गया, तो he has left holographic those messages for those upcoming superheroes. पीटर पार्कर यहाँ पे एक फैमिली मैन है, वो 40 का उम्र का हो गया, स्पाइडरमैन बना ही नहीं। हाँ, तो स्पाइडरमैन नहीं बना, तो उसके लिए एक मकड़ा छोड़ के गया भाई, ठीक है, काट खा लेना जब टाइम आए। तो एग्जैक्टली दिस इज द स्टोरी। उसके लिए एक मकड़ा छोड़ के गया, और उसके लिए एक कॉस्ट्यूम छोड़ के गया, वो विनम टाइप के कॉस्ट्यूम मॉर्फ करता है, सो वो मकड़े से कटवाया खुद अपने आप को, फिर बन गया स्पाइडरमैन। मजबूरी समझो दोस्तों। तो ऐसा गिमिक्स है मार्वल में, डीसी को ऐसा गिमिक्स नहीं देना पड़ता है। एब्सोल्यूट पावर भी वाज आल्सो गुड, एब्सोल्यूट पावर वाज गुड, आई हैव रेड एब्सोल्यूट पावर, नया वाला आके एब्सोल्यूट पावर ही निकला है। तो सो या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। काफी डिस्कशन हुआ, बातचीत हुआ, बाकी ऑफ कैमरा होगा। We should do this kind of podcast. बिल्कुल, You know, like that. pretty entertaining for me, and yeah, and you guys will also get to know what books to read. He is the encyclopedia. He can tell you more. बिल्कुल, काफी इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिला, काफी जानकारी मिला, अभी बाकी और भी मिलेगा, एंड आई होप आप लोगों को भी काफी इन्फॉर्मेशन मिला जो आप लोगों को शायद इससे पहले नहीं पता था। सो यू नो, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इफ नॉट यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। So I'll be seeing you all in my next video, guys. Till then, take care. Bye bye. So guys, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। This was basically a 2-part video. The first part being the vlog and comics collection one, and this was more like a podcast interview session kind of thing. And I think the date was 21st of February if I'm not wrong, because उसके बाद I was busy with Comic Cons and stuff. एंड ये वीडियो शूट करने के जस्ट बाद वाला दिन ही मुझे पता चला, जब मैं कॉमिक कॉन में था, कि पीकूदा's father had passed away. His father was featured in the first video. You have seen him. He was doing pretty well, but then unfortunate event happened. There was this sudden demise,
and that is what creates an extra sense of emotional gravity for these two-part videos. And I just hope he is in a better place now, and deepest condolences to Pikuda and his family. So yeah guys, life is very uncertain, it has its ups and downs, so enjoy to the fullest, live every day, live every moment. आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, and I'll be seeing you all in my next video. Till then, take care, bye bye.